एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इतने जन चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं फॉरेन में, आप बैठ जाओ सब अपने अपने स्थानों के ऊपर। और मेरा ये बिलीव है कि आज की मीटिंग, आज का वर्ड प्रेयर्स के दौरान परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगी के अंदर बड़े और अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। तो सब बैठ जाओ, ये समय टेस्टिमनीज को सुनने का है। गवाहियों को जब आप सुने पूरे ध्यान से, आत्मा में रहते हुए पूरे विश्वास के साथ कि परमेश्वर ने कैसे बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए, तो इन टेस्टिमनीज को आपने पूरे ध्यान से आपने सुनना है। फर्स्ट टेस्टिमनी मंजीत की है, सिस्टर मंजीत की टेस्टिमनी, और ये समय कैलगरी चर्च ब्रांच में मौजूद है। इनकी टेस्टिमनी के 23 सालों से ये कनाडा में रह रहे हैं और 2017 से ये एकुलर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। और काफ़ी सालों से इनको एक रोग शुरू हुआ था इनके घुटनों में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इनकी बढ़ चुकी थी। तो आइए इनकी गवाही को हम इन्हीं के मुंह से सुनते पहले। ਚਾਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਆਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ। 2017 ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਕਰੂਸੇਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗੀ। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਡੇ 2 ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਲੇ ਹੈਂਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਫਤਾ ਆ ਕੇ ਕੈਲਗਰੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਠ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। हालेलुया हालेलुया। सब तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ कि 6 सालों पुराना रोग आज इनकी बॉडी से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और जब डे 2 क्रूसेड हुआ, अभी रिसेंटली जो परमेश्वर के दास यूएसए में गए क्रूसेड के लिए न्यूयॉर्क में, तो उस क्रूसेड के दौरान इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, ले हैंड हुआ। उसके बाद से बीमारी इनकी पूरी तरह से जाती रही, कोई एर्थराइटिस नहीं है, कोई उसके बाद इनके घुटनों में बीमारी नहीं है, कोई मेडिसिन, कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बहन पूरी तरह से उस बीमारी से आजाद हो चुके हैं। तो अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोले और इस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो ये अगली गवाही सिस्टर हरप्रीत को सुनेंगे। ये गवाही इनकी बेटी की है, उसका नाम प्रभजीत है और ये बर्मिंघम चर्च ब्रांच से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। तो ये पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਲੈਗ ਆ, ਉਹਦੀ ਟੀਬੀਆ ਬੋਨ ਆ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਬੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਲਾਸਟਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਰੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਜੁੜ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ
ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਸਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਉੱਥੇ ਆਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਇਸ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ खुदावंद ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करे के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। हालेलुया। तो आपने सुना कि इनकी बच्चे की जो लेफ्ट लेग पूरी तरह से टूट गई थी और डॉक्टरों ने बोला था कि सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बिना कोई इसका इलाज नहीं है। और काफ़ी परेशान थी बच्ची, प्रॉपर चल तक नहीं पा रही थी। आप देख सकते हो उसकी फोटो को कि बड़ा प्लास्टर उसके लगा हुआ था, लेकिन चर्च के साथ लगातार जुड़े रहे। बर्मिंघम चर्च ब्रांच में लगातार जाते रहे। उनकी बेटी पहले आप देख सकते हो साइड पे वीडियो पे कि ऐसे वो चलती, जब वो जिसकी लेग जो फ्रैक्चर थी तो वो ऐसे चलती थी। लेकिन जैसे लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, फिर 11 मई 2025 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, बीमारियों को डांटा और बोला कि तुम चलना शुरू करो, यीशु मसीह आज तुम्हें हील करेंगे। इन दोनों ने अपने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया इनकी बेटी को आप देख सकते हैं वो टूटी हड्डी को यीशु मसीह ने जोड़ा और बिना क्लचेस के पूरी तरह चल पा रही, पूरी तरह हील है। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इस गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोले। मेरा विश्वास अगर आप भी ऐसी हालत में हैं, आप कैसी भी हालत में चर्च पे है, आज जैसे परमेश्वर के दास प्रार्थना करेंगे, आप जैसे वचनों को सुनेंगे, मेरा विश्वास है आज आपकी बीमारियों को, शिकंजों का आज आखिरी दिन होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और आप बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। तारीफ करे के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर मनोज की ये गवाही है, टोरंटो ब्रांच से हमारे साथ लाइव है। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਟੋਰੰਟੋ A&M ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ 2021 ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਵੇ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 2 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਸਪਰੇਅ ਦਿੱਤੀ ਨੱਕ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇਟਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀਗਾ। ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫੇਵਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫੇਵਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਈਨਸਾਈਟਿਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਗਸ ਦੀ ਬੋਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਸਰਜਰੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਰਾ ਲੇ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਾ ਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਣੀ ਸਰਜਰੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਮੈਂ A&M ਚਰਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋ ਦਾਸ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਲਦੇ 28 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਥਰਸਡੇ ਫੁੱਲ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਘਰੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬੈਸਟ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ गवाही सारे जय मसीह दी। हालेलुया। जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस भाई की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, बने हुए थे, तो उन्होंने लगातार परमेश्वर की हजूरी में आना शुरू किया और थर्सडे फुल नाइट प्रेयर को जब इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की आत्मा ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन से वो डिप्रेशन जा चुका है,
वो रोग जा चुका है पूरी तरह से। परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर पूजा की हमारे पास आई है। ये हरियाणा के रहने वाले हैं और लगातार सिरसा हरियाणा चर्च ब्रांच के साथ ये जुड़े हुए हैं और आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਜਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬੇਬੀ ਦਾ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ 2 ਨਾੜੂਏ ਸੀਗੇ। ਬੇਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਿਆ ਬੇਬੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਬਚਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ICU 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ है मेरा बेबी। इसलिए प्रभु दे दास और दासी का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस बहन का लगातार विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। फिर एक दिन 13 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया था। तो आइए सबसे पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। बोलो, शत्रु की सारी सामर्थ पर मुझे अधिकार है। आउट करता हूं शत्रु को, शैतान को, बीमारी को, आउट। और जैसे पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना को ग्रहण किया और उस दिन ये बहन हॉस्पिटल में मौजूद थे और पूरे विश्वास के साथ जैसे प्रार्थना को ग्रहण किया उसी समय जो बेटी थी उसने मूवमेंट करनी शुरू की और प्रॉपर सांस आनी शुरू हुई और आज इनकी बेटी 1 साल से पूरी तरह से हील हो चुकी है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर आप लोगों के वंशों की रक्षा करता है, उन्हें संभाल के रखता है और बड़ी टेस्टमनी के साथ आपको खड़ा करता है। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। इस भाई का नाम ओपिकांतो पात्र है और इनकी टेस्टमनी है कि 4 साल पहले ये बहुत ज्यादा बीमार हुए और जिसकी वजह से इनकी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि कुछ भी इनको डाइजेस्ट नहीं होता था। इनका लिवर अंदर से टोटली डैमेज्ड हो चुका था। तो सुनते हैं इनके मुंह से इनकी उस समय की हालत कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में ये काम किया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम ओपिकांत पात्र है। आज मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। आज से 4 साल पहले मेरे पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया था। मैं कुछ भी खाता था मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे दवाइयां दी, मैंने दवाइयां ली पर मुझे कोई आराम न मिला। दर्द लगातार बढ़ता रहा। दर्द इतना बढ़ चुका था कि मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट किया और बताया आपकी लिवर की 2 नालियों में इन्फेक्शन हो गया है और वो फूल गई है। डॉक्टर ने मुझे दवाइयां और इंजेक्शन दिया। मुझे दिन में 7 बार तक इंजेक्शन लेना पड़ता था। दर्द इतना बढ़ गया था कि मैं पेट में टॉवल बांध के रखता था। डबल डोज का पेन किलर लेना पड़ता था। कुछ भी खाता था तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। मैं इतना कमजोर हो गया था कि मुझे टॉयलेट वॉशरूम के लिए अपनी वाइफ का सहारा लेना पड़ता था। सब काम बंद हो चुके थे। मैं पूरी तरीके से बिस्तर में हो चुका था। मैं अपने इलाज में 10 लाख रुपए तक खर्च कर चुका था। 17 डॉक्टर मैंने चेंज कर चुके थे। मुझे हफ्ते में कई बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। परेशान हो चुका था। मैं अपनी वाइफ से बोलता था कि मुझे जहर दे दो, मुझे नहीं जीना। इतनी लाइफ खराब हो चुकी थी कि मेरी हालत देखकर मेरे बड़े भाई ने मुझे मेदिनीपुर के ANM मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मैं ANM मिनिस्ट्री में जाने लगा। पहली बार जब मैं गया तो मुझे वॉमिटिंग हुई और मुझे बहुत हल्का पेन महसूस हुआ। उसी दिन से मेरी रिकवरी शुरू हो गई थी। मैं लगातार चर्च में जुड़ा रहा और आज 2 साल हो गए। मुझे किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आज इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय। और ये भाई उसके बाद पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं। आज लगभग 1 साल 5 महीने के करीब हो चुके हैं। अगर आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना तो 4 साल पहले जब ये बीमार हुए उसके बाद जब चेकअप इनका हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि इनके लिवर में और पेनक्रियास में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ चुकी है और 40 बार इनको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा और इन्होंने 17 डॉक्टर चेंज किए। 10 लाख रुपए से ज़्यादा इनके इलाज के ऊपर पैसा खर्च हो चुका था और
बहुत इन्होंने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास जाकर भी इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर जब किसी ने अंकुरला मिस्ट्रीज के बारे में बताया तो प्रेयर को रिसीव किया। परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के वर्ड्स डिक्लेयर किए और इन्होंने उस वर्ड को प्रॉपरली बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया, तो जिस ऑपरेशन के लिए इनको डॉक्टर्स ने बुक करके रखा हुआ था उस ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया। उसके बाद इनका पैनक्रियाज बिल्कुल हील है प्रॉपरली, लिवर प्रॉपरली हील है, प्रॉपर खाना खा पाते, कोई इन्फेक्शन नहीं है। परमेश्वर की तारीफ करें इस अमेजिंग टेस्टमनी के लिए अपने हाथों को उठा के। थैंक यू जीसस बोलते हैं ऊंची आवाज में। ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है, बड़ी गवाही है। तो परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। तो ये अगली गवाही सिस्टर ओमवती की सुनेंगे। इस बहन का नाम ओमवती है और ये हरियाणा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। इनकी गवाही पिछले 5 साल से सिस्टर बहुत ज्यादा बीमार थे। इनका वेट इतना ज्यादा बढ़ने लगा तो इनके बाल भी झड़ने लगे और गले में 2 इनकी बड़ी बड़ी गिल्टियां बन चुकी थी और काफी परेशान थी सिस्टर। रोग बढ़ता जा रहा था, गले के दोनों साइड जो गिल्टियां बन गई, इतना ज्यादा जैसे मांस इनके लटकता था, काफी परेशानी में थे। 8 डॉक्टर लगातार इन्होंने चेंज किए लेकिन बिल्कुल कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो आज सिस्टर ओमवती हरियाणा से हमारे साथ तो लाइव जुड़े हुए। तो आइए हम पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सबने जय मसीह दी। मेरा नाम ओमवती है। मैं अपने थायराइड ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ थायराइड ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਲੇ 'ਚ ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਗਲੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ थायराइड ਹੈ ਔਰ थायराइड ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। मैं लगातार दवाइयां खाती रही लेकिन दवाई खाने नाल कोई आराम नहीं लग्या। मेरा शरीर कमजोर हुंदा गया, थकावट महसूस हुंदी सी, मेरे को चलिया फिरा नहीं सी जांदा, मैं बेड ते लेटी रहंदी सी और कोई काम करने ते जी नहीं सी करदा। मैं लगातार चर्च नाल जुड़ी रही और प्रेयर नु रिसीव करदी रही। 2 फरवरी 2025 नु एपोस्टल जी दे द्वारा प्रेयर नु रिसीव किया और ओदे बाद मैनूं बिल्कुल आराम लग गया और मैं हुण बिल्कुल ठीक ठाक हां। मैं परमेश्वर दा और परमेश्वर के दास दासी का दिल तो धन्यवाद करना। जय मसीह। तारीफ करे के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सब आपने सुना कि कैसी कितनी गंभीर हालत थी सिस्टर की। 8 डॉक्टर लगातार चेंज किए, पूरी बॉडी इतनी ज्यादा वीक हो चुकी थी कि 24 घंटे टोटली बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे, कोई काम तक नहीं कर पाते थे, चलना फिरना भी इस बहन के लिए मुश्किल था। तो ऐसी हालत में फिर किसी ने इन्हें अंकुरला मिस्ट्री के बारे में बताया तो लगातार चर्च आना स्टार्ट किया। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि लाइफ टाइम आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। ऐसी निराशा भरी लाइफ को लेकर चर्च में आए थे और उस दिन 2 फरवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, बीमारियों को डांटा। तो आइए हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को उठाकर सब प्रकार के रोग मैं उन्हें श्रापित करता हूं। हर तरह के बीमार चंगे हो जाओ, हर तरह के रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। और आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, रोगों को डांटा, बीमारियों को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया आपने सुना कि इनके गले के लेफ्ट राइट से दोनों बड़ी बड़ी गिल्टियां बन चुकी थी और काफी डरे हुए थे। लेकिन जैसे प्रार्थना रिसीव की वो गिल्टियां उसी समय गायब हुई, वो रोग पूरी तरह से खत्म हुआ। अब 7.5 महीने हो चुके हैं, ये बहन पूरी तरह से हील है, कोई मेडिसिन ले रहे। यीशु मसीह ने इस बहन को पूरी तरह से हील किया। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। ये वो डॉक्टर जीरस आज आपके बीच खड़ा है। तो मेरा विश्वास है अगर आप इन गवाही को सेलिब्रेट करेंगे अगला नंबर आपका होगा और आप भी बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। तारीफ करे के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जन ऊंची आवाज के साथ। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर रिम्पी की ये गवाही है, पठानकोट के ये रहने वाले हैं। आज ये भी हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में ब्लेसिंग को दी है। ਸਾਰਿਆਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿੰਪੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਹੋਣਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਐਨਐਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 16 ਜੂਨ 2024 ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਰੱਖਿਆ। 18 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। आपने इस बहन की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें ब्लेस किया। तो 16 जून 2024 को जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, जब ये घर गए, जब ये सो गए, तो इनके ड्रीम में परमेश्वर के दास आए। उन्होंने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की और इनको वर्ड दिए कि अपनी टेस्टमनी को रिसीव कर। और जैसे ही इन्होंने उस वर्ड को और उस लेहन को रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और ये उसके बाद प्रेग्नेंट हुए। परमेश्वर ने इन्हें संभाल के रखा और परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में काम कर रहा है, उन्हें ब्लेस कर रहा है, आशीषित कर रहा है। जोर से इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। और इस तरह से नेक्स्ट वही नीदरलैंड चर्च ऑफ ब्रांच से सिस्टर दृष्टि की हमारे पास आई है और आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं बहन अपनी टेस्टमनी में। सबको जय मसीह की। मैं अपनी लाइफ की बहुत बड़ी टेस्टमनी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं जब इंडिया से नेदरलैंड्स आई थी तो फ्लाइट में ही मुझे कुछ अजीब सा फील होना शुरू हो गया था और उसके बाद 2 महीने के बाद ये चीज़ें बहुत बढ़ने लगी। मुझे अकेले रहना अच्छा लगने लगा। मैं किसी से बात नहीं करती थी, अकेले रोती रहती थी और ये चीज़ें बहुत बढ़ती गई। फिर दिसंबर में मुझे ब्रांच के बारे में पता लगा तो मैंने ब्रांच आना रेगुलरली शुरू किया और जब मैंने ब्रांच आना शुरू किया परमेश्वर के दास के प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव करते गए तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। फिर हमें पता लगा कि पोर्तुगल क्रूसेड होने वाला है एक बहुत बड़ा, जहाँ प्रभु के दासी आने वाले हैं। तो मैं गई वहाँ पर और मैंने परमेश्वर के दास से बपतिस्मा लिया। उस बपतिस्मा के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज है। मैं हर डिप्रेशन से आज़ाद हूँ और मुझे अब कोई डर नहीं लगता। मैं खुश रहती हूँ, मैं अपनी अच्छे से पढ़ाई करती हूँ और परमेश्वर के दास का और परमेश्वर की दासी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे जाएं कि कैसे परमेश्वर यूथ को आजाद करें, उन्हें ब्लेस करें। और आपने सुना कि लगातार ये ब्रांच के साथ जुड़े हैं और फिर 24 जुलाई 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया था। तो आइए सबसे पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं, क्योंकि जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कामों को करते हैं। और इस बहन ने जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और आज ये बहन पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से ब्लेस है और बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने इन्हें खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहे हैं, लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम पार्वती है और जमशेदपुर के ये रहने वाले हैं। 2006 में इनकी मैरिज हुई थी, उसके बाद से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। तो आइए इनकी गवाही को सुनते हैं। पहले मसीह की, मेरा नाम पार्वती सिद्धू है। मेरी अभी 40 वर्ष उम्र है। 2006 में शादी हुई। मेरी शादी के बाद मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। मैं अपने भाइयों का सपना देखती थी जो मर चुके हैं, वो मुझे अपने साथ कहते थे चलो मेरे साथ मरने।
मैं जब भी थूकती थी तो मेरे मुंह से ब्लड निकलता था। सारे मुझसे बहुत परेशान थे मेरी ये हालत देखकर। मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं अकेले रहना पसंद करती थी। मैं रात को उठ के चिल्लाती थी। मैं दुष्ट आत्मा को देखती थी, वो मेरे साथ बात करता था। मैं उनकी परछाइयों को देखती थी, मैं चिल्लाने लग जाती थी, मैं घर से भाग जाती थी। मेरे घर वाले मुझे पकड़ के लाते थे। मैं अन्य जगह पर गई पर मुझे कोई आराम नहीं मिला। मेरे किसी रिश्तेदार ने मुझे अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मैं लगातार चर्च ब्रांच आने लगी और मैं प्रार्थना को अटेंड करती रही। और 4 मार्च 2025 को मैं प्रार्थना को अटेंड कर रही थी। उस सामर्थी प्रार्थना को अटेंड करने के बाद मुझे दुष्ट आत्मा छोड़कर चला गया। मुझे खून की उल्टी हुई और तब से मैं फ्री हूँ। अभी मुझे पूरे 4 महीने 11 दिन हो चुके। मैं दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें कलीसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें। 4 मई 2025 की मीटिंग के दौरान जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ। एक बार हम उस प्रेयर को देखते हैं। बोलो, हर वो आत्मा, हर वो चीज जो मेरे जीवन में प्रभु की ओर से नहीं है, मेरे जीवन को छोड़े और जाती रहे। कमांड करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, मेरी बॉडी को छोड़े, ब्लड को छोड़े, हड्डियों को छोड़े और जाती रहे। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए प्रेयर को रिसीव किया तो सेम टाइम वो दुष्ट आत्मा इनके अंदर से निकला और इनको ब्लड की वॉमिटिंग्स हुई। उसके बाद से जब इन्होंने चेक करके देखा तो ये बहन पूरी रीति के साथ हर तरह के दुष्ट आत्मा के प्रभाव से पूरी तरह से आजाद हो चुके। तो परमेश्वर की तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोलते हुए इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। अपने हाथों को उठाते हुए चर्च ब्रांचेस परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। तो ये अगली गवाही ब्रदर रोशन झा की सुनेंगे। ये भाई बेंगलुरु कर्नाटका से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। इनकी गवाही के 10 साल पहले ये भाई गलत संगति में चले गए थे और इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया। ये भाई शराब का, तंबाकू का, सिगरेट का और मेडिकल नशा भी करते थे। तो आज ये ब्रदर रोशन झा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। तो आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रोशन झा है। आज जब मैं 18 साल का था उस टाइम पे मैंने नशा शुरू किया गलत संगति में जाने के साथ। धीरे धीरे मैंने थोड़ी थोड़ी नशा शुरू की, उसके बाद ड्रिंक शुरू कर दिया, उसके बाद सिगरेट लेता था, फिर गांजा पीने लग गया, उसके साथ ही साथ मैं विचार में भी चले गया और मैं नशा बहुत करता था। और करते करते फिर धीरे धीरे मैं नशा करके घर भी जाना शुरू कर दिया और घर पे जब नशा करके जाता तो फिर मेरे घर में लड़ाई शुरू हो गई। फिर हम हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई रहा करता था और घर में बहुत ज्यादा कलेश शुरू हो गया। उसके बाद मैं ऐसे ही सोशल मीडिया पे भी मैं बहुत ज्यादा वीडियोस देखता था, दिन भर यूट्यूब देखता था, फेसबुक चलाता था। वहां से भी मेरे को व्यभिचार का अटैक और भी ज्यादा होने लग गए। उसके बाद मैंने जब यूट्यूब चला रहा था तो एक दिन मैंने एक वीडियो देखा जिसपे पापा जी प्रीच कर रहे थे और वो वर्ड मेरे को छुआ। और ऐसे वीडियो देखते एक दिन जब मैं फायर प्रेयर देख रहा था उस टाइम पे पापा जी दुष्ट आत्माओं को डांट रहे थे व्यभिचार की, नशों की, और मैंने उस वर्ड को अपने लिए रिसीव किया और मैं विचार से और नशों से आजाद हुआ। आज पूरे 3 साल हो गए मैं पूरी तरीके से नशे से विचार से आजाद हूँ। मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे आजादी दी है इस विचार से और नशों से। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह का। तारीफ करे के लिए, गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। तो भाई बता रहे फिर 25 मई 2022 को परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की। उस प्रार्थना में परमेश्वर के दास ने नशे की गंदी आत्मा को डांटा। तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया वो 10 साल पुराना नशे का आत्मा, वो डिप्रेशन का आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। उसके बाद आज 3 साल 4 महीने हो चुके। भाई पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं, कोई गलत काम नहीं, कि बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए। थैंक यू जीसस बोले कि वो परमेश्वर आपके जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सरी चर्च ब्रांच से गवाही है, सिस्टर का नाम काजल है और आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। जय मसीह की। मेरा नाम काजल है, मैं सारी ब्रांच से जुड़ी हूँ। मैं कनाडा में 4 साल से रह रही हूँ। मेरे जीवन की गवाही यह है कि
मेरे ऊपर एक भारीपन रहता था, कुछ बातों को लेकर मेरे ऊपर एक सिर पे बोझ ही रहता था, बोझ की तरह वो मेरे जो सिर दर्द देता था और वो बातें मुझे याद आती रहती थी। लेकिन संडे को लास्ट वीक की फायर मीटिंग प्रेयर के बाद वो सारी बातें, वो बोझ मेरे ऊपर से चली गई और मैंने घर पर भी रह के चेक किया, वो बातें अब मुझे कोई टेंशन भी नहीं देती, वो बात की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि उस बात को लेकर मुझे चिड़चिड़ापन भी होता था, थोड़ी देर अपने आप को आइसोलेट करना मुझे ऐसा लगता था। लेकिन संडे फायर प्रेयर के बाद वो सारी बोझ मेरी चली गई। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दें। आपने सुना इस बहन की गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद के इन्हें रिहा किया। तो 28/9/2025 को संडे मीटिंग में इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया था। तो आइए हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को भी देखते हैं। अपने हाथों को उठा लो, बोलो शैतान, शैतान तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं, तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं। जादू टोने का आत्मा, जादू टोने का आत्मा, जादू की टोने की शक्तियां, व्यभिचार की ताकत, डिप्रेशन का आत्मा, बीमारी का आत्मा, कमजोरी का आत्मा, होली गोस्ट फायर। जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। उस दिन से पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए, इस आजादी के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को आजाद करता है जब वो विश्वास के साथ रिसीव करते हैं। तो आज भी अगर आप विश्वास के साथ रिसीव करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा, बड़ी गवाहियों को देगा। जोर से अपने हाथों को उठाएं, तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करें, जोर से तारीफ करते जाए परमेश्वर की। तो तारीफ करने के लिए, सैन्य गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सज्जन। आप जानते हैं कि अंकुर मिनिस्ट्री की जो कलीसियां हैं वो लगातार ब्लेस्ड हो रही हैं। जो हमारे स्पिरिचुअल मदर है प्रभु की दासी, वो लगातार हमें गाइड करते हैं कि अगर आप खट्टी में भी बोएंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो बोने के द्वारा, ऑफरिंग के द्वारा जिन लोगों ने बड़ी ब्लेसिंग्स को लिया, उनमें से बहुत सी गवाहियां हमारे पास हम सुनेंगे। ब्रदर राहुल है टोरंटो चर्च ब्रांच से, परमेश्वर ने इस भाई को कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे के लिए, इस गवाही के लिए। और ब्रदर अमनदीप सिंह है साउथ हॉल चर्च ब्रांच से, परमेश्वर ने इस भाई को अमेजॉन वेयर हाउस में जॉब के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे सब जन इस गवाही के लिए। और सिस्टर शशिकला यूएस से, न्यूयॉर्क से, इस बहन को परमेश्वर ने जॉब के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे इस गवाही के लिए सब जन। और सिस्टर काजल है मलेशिया से, इस बहन को परमेश्वर ने वर्क परमिट के साथ ब्लेस किया। और ब्रदर साहिल बर्मिंघम से, इसको भाई ने परमेश्वर ने यूके के स्टडी वीजा के साथ ब्लेस किया। ब्रदर अमन पीटर शिकागो चर्च ब्रांच से, इस भाई को परमेश्वर ने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे सब जन इस गवाही के लिए। और ब्रदर राहुल है नोवा स्कोशिया ब्रांच से, परमेश्वर ने इस भाई को वर्क परमिट के साथ ब्लेस किया। और ब्रदर सहानी शिकागो से, इस भाई को परमेश्वर ने जॉब के साथ ब्लेस किया। सिस्टर फरहत गिल मैनचेस्टर ब्रांच से, इनके एग्जाम को परमेश्वर ने बेस्ट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया। उसके बाद इन्हें परमेश्वर ने बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे कलीसिया। और ब्रदर पारस है टोरंटो चर्च ब्रांच से, इस भाई को परमेश्वर ने हाउस के साथ ब्लेस किया, हाउस की ब्लेसिंग दी। तारीफ करे कलीसिया इस भाई के लिए। और आप इनके घर की फोटोज को देख सकते हैं ब्रदर पारस के, कि परमेश्वर ने इस भाई की फजूल खर्ची को छिड़का, इनके हाथों के कामों को फलवंत किया, ब्यूटीफुल हाउस के साथ ब्लेस किया। और सिस्टर ममता टोरंटो चर्च ब्रांच से, परमेश्वर ने इस बहन को जॉब के साथ ब्लेस किया। सिस्टर वंदना मॉन्ट्रियल से, इस बहन को परमेश्वर ने अमेरिका के वीजा के साथ ब्लेस किया। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन। इन गवाहियों के लिए थैंक यू जीसस बोले, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। ये समय बोने का, तो अपने ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को अपने हाथों में निकालने वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे। आप जानते कि आपका बोया गया बीज परमेश्वर के जीवित कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने दिल को खोलें और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, स्पेशल बीजों को आज अपने बोना है। आप जानते हैं कि चर्च भवन के निर्माण का जो काम है बहुत ही स्पीड के साथ, तेजी के साथ वो चल रहा है। और इवेंजलिज्म का, सुसमाचार का काम जो है वो चल रहा है। तो लगातार अपने स्पेशल बीजों को बोएं, अपनी ऑफरिंग्स को निकालें, अपने टाइथ को बोने में वफादार रहें और लगातार परमेश्वर की महिमा के लिए अपने बीजों को बोते जाएं। टाइथ, जब दशमांश आप बोते हैं, आप परमेश्वर का वर्ड पूरा करते हैं। 10वां हिस्सा अगर हम प्रभु को देते हैं तो 90% जो हमारे पास बचता है उसके ऊपर परमेश्वर बरकत देते हैं। हालेलुया। तो आपको वचन पूरा करना है। अगर हम परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की बरकतों को अपनी जिंदगी के ऊपर आता हुआ देखना चाहते हैं तो हालेलुया।
तो इस समय वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को उन बाल्टियों में, बकेट्स में डालते जाएं। अपनी बेस्ट ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को निकालें चर्च ब्रांचेस और उन बकेट्स में, बाल्टियों में डालते जाएं। अपनी स्पेशल ऑफरिंग को और स्पेशली इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार आप जरूर बने। अपने स्पेशल बीजों को बोएं ताकि इवेंजलिज्म का काम जो है, सुसमाचार प्रचार करने का काम है, वो और भी स्पीड के साथ हो सके और लाखों लोगों तक लगातार परमेश्वर का वचन जो है पहुंचाया जाए। तो यदि आप फॉरेन में रहते हुए किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, आप अपनी ऑफरिंग को भेजने के प्रति या कोई भी और इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, तो जो नंबर्स आपके लिए डेडिकेटेड हैं, उन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेजना है। और यदि आप फॉरेन में रहते हुए इंडियन अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इंडियन अकाउंट्स के थ्रू अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स नंबर, ICICI बैंक, HDFC, इनकी फुल डिटेल जो है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आप इनको नोट करके इसके जरिए अपनी ऑफरिंग को आप चर्च के अकाउंट्स में भेज सकते हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आपने परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाना है। तो जिनके इंडियन अकाउंट्स है वहां पर भी आप चलाते हैं, तो आप डायरेक्ट भी इन बैंक अकाउंट्स में एप्लीकेशंस के थ्रू अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। और जो लोग इस मीटिंग को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप ऑनलाइन अटेंड करें, तो आप UPI एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। QR कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, तो अपने मोबाइल फोन से इनको स्कैन करके आप लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को, अपने परमेश्वर के कामों के लिए लगातार चर्च में भेजते जाना है। बैंक अकाउंट्स के QR कोड्स को भी स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपनी सीड को, अपने टाइथ को अपनी लगातार चर्च में भेजते जाना है, ताकि चर्च भवन से जितने भी काम, जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो सारे तेजी के साथ और जल्दी जल्दी कंप्लीट होने पाए। और जो लोग इस समय आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करें, मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड को स्कैन करके या बैंक अकाउंट्स के जरिए जो लोग नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, और आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू अपनी ऑफरिंग को एप्लीकेशंस के थ्रू ही चर्च में आप सेंड कर सकते हैं। और यदि आपके पास ऑनलाइन मेथड नहीं है, तो आप अपनी ऑफरिंग को निकाल के अपने पास रख लें। जिस दिन आप चर्च में आएंगे या चर्च ब्रांचेस में आएंगे, तो अपनी ऑफरिंग को खुद डाल के जाएं। संडे थर्सडे के अलावा, मीटिंग वाले दिन के अलावा, कभी भी किसी भी समय चर्च ऑफिस में आके आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डालने के लिए, अपने बीजों को बोने के लिए, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आ सकते हैं। तो जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में हैं, आप अपने स्पेशल ऑफरिंग्स को, स्पेशल बीजों को लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। और इसी हफ्ते, इस मंगलवार और बुधवार को प्रेयर माउंटेन से 2 दिन की जो प्रेयर्स हैं, वो स्पेशल हीलिंग और डिलीवरेंस प्रेयर है। परमेश्वर के दास उस प्रेयर को लीड करेंगे। 14 और 15 अक्टूबर को, मंगलवार और बुधवार को शाम को 8 से 9 1 घंटा जो प्रार्थना का है। तो इन प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स को आप ऑनलाइन रिसीव करने के लिए तैयार रहें। जो लोग बीमार हैं, जिनको आप जानते हैं, उनको इस मीटिंग का लिंक आपने व्हाट्सएप कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि जब वो इस मीटिंग को अटेंड करें, प्रेयर को रिसीव करें, तो परमेश्वर उन्हें छुए, उनकी लाइफ में काम करे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपने शेयर भी करना है, और खुद भी इन प्रेयर्स में आपने अटेंड करना है, इनका हिस्सा बनना है, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आपकी लाइफ में भी काम हो सके। मेरा ये दिल, मेरी ये जान। और अभी भी जो लोग फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं, अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को बोते जाएं, पार्टनरशिप्स को जरूर लें।
मेरे प्यार दी खातिर अपना रूप वटाया, आसमानां नूं छड्ड के मैं प्यार दी खातिर आया। नूर मेरी रामा दा सरगी ओ किनारा, फेर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा, रूह दा प्यारा मेरी जिंद दा सहारा, फेर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा, फेर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा, फेर आवेगा मेरी रूह दा प्यारा, फेर आवेगा मेरी रूह दा प्यारा, रूह दा प्यारा मेरी जिंद दा सहारा, रूह दा प्यारा रूह दा प्यारा